جو ہمارے تازہ ترین جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق 4 بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ان کو اس چیئر لفٹ سے نکال کر جو ہے وہ محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق 4 بچے ان کو جو ہے وہ لفٹ سے نکال لیا گیا ہے اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان بچوں کو وہاں پہ طبی امداد دی جا رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء دی جا رہی ہے، مہیا کیا جا رہا ہے اور دیگر سہولیات بھی دی جا رہی ہیں جن کو ان کی پورے طور پر ضرورت ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی بچے کو طبی امداد کی ضرورت ہے تو اس کو یہاں پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل کسی منتقل کیا جائے۔ بچوں کو ابتدائی طور پہ جو اسپاٹ مختص کیا گیا تھا وہاں پر اتارا جا رہا ہے، وہاں سے ان کو ریسٹ ہاؤس منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو ان کا طبی معائنہ کرے گی۔ فوجی حکام وہاں پر بذات خود موجود ہیں جو اس تمام ریسکیو آپریشن کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس تمام عمل کے بعد جو ہے ان بچوں کی صحت اور ان کی طبی جانچ کے بعد جو ہے ان کو گھروں کو جانے کی اجازت دی جائے گی۔ بچوں کے والدین اور دیگر رشتہ دار وہ بھی موقع پر موجود ہیں اس وقت۔ جی ٹھیک ہے، موقع پر ہی موجود ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک بچے کی حالت زیادہ خراب بتائی جا رہی تھی جو صبح سے بے ہوش بھی تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ دل کا مریض ہے، کیا اسے بھی نکال لیا گیا ہے؟ جی، بچوں کو جو ابھی اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جتنے بچے تھے وہ اس وقت اسٹیبل حالت میں تھے۔ 6 کے 6 بچے جو ہیں ان کی حالت بہتر تھی۔ 2 بچے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ایک بچہ جو دل کا مریض تھا اور ایک بچہ جو بے ہوش ہو گیا تھا خوف کی وجہ سے، وہ دونوں جو ہیں نارمل حالت میں تھے، اسٹیبل حالت میں تھے اور اس جو ہے اپنے ہوش آواز میں تھے جس وقت ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ احتیاط یہ کی گئی کہ پہلے ان بچوں کو جو مکمل طور پر صحت مند ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر بچوں کو بھی ساتھ ساتھ نکالا جائے۔ یہ عمل جاری ہے۔ اب تک 4 بچے جو ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ 4 افراد مزید رہتے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ چند منٹوں میں ہی یہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ تمام بچوں کو بخیر عافیت کے ساتھ جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا جہاں پر ان کی طبی جانچ پڑتال ہوگی اور اس کے بعد انہیں جو ہے مزید پھر کارروائی اس حوالے سے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، عابد حامد ایک بار پھر بتا دیجیے گا ناظرین کو کتنے بچوں کو ابھی تک جو ہے باحفاظت نکالا گیا ہے؟ جی، یہ ایک بچے کو نکالا جا رہا ہے اور اب تک 4 بچے جو ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ اس جو چیئر لفٹ تھی اس میں 8 افراد سوار تھے جس میں 6 بچے تھے، 2 اساتذہ تھے۔ ان میں سے 6 میں سے 4 بچوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ 4 افراد جن میں 2 بچے اور 2 اساتذہ باقی ہیں ان کو ریسکیو کی جانا ابھی باقی ہے۔ ریسکیو عمل بند نہیں کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے اندھیرا ہونے سے پہلے یہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے۔ اس میں کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ 4 افراد کو یہ گزشتہ چند منٹوں میں یا گزشتہ 15 سے 20 منٹ 10 سے 15 منٹ کے دوران ریسکیو کیا گیا ہے اور امید ہے کہ اتنی ہی وقت میں باقی افراد کو بھی ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک 4 بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں؟ صبح سے دیکھا ہم نے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا رہا، ونڈ پریشر بھی رہا۔ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ان علاقوں میں جو ہے موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ موسم ابھی بھی وہاں پر زیادہ بہتر نہیں ہے اگرچہ کہ موسم اور دیگر عوامل جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اس کے موافق نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ پائلٹ اور پیراٹروپرز ہیں جو کے جوان ہیں، ان کی یہ کامیابی ہے، ان کا یہ تجربہ ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام پر مشکل و کھٹن حالات کے باوجود بچوں کو جو ہے نکال رہے ہیں۔ نہ صرف نکال رہے ہیں بلکہ ان کو محفوظ طریقے سے منتقل بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہوا کا دباؤ بدستور ہے۔ چون ٹائم گزرتا جاتا ہے ہوا کا دباؤ ان علاقوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقے ہیں، یہ درہ نما علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑ ہوا کا دباؤ ہر وقت ہوتا ہے خصوص ظہر کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان یہ جو ہے ہوا کا دباؤ میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سردی کی شدت بھی بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں پر موسم تبدیل ہوتے ہوئے کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے، کسی ٹائم بھی سردی کی شدت بڑھ سکتی ہوتی ہے، مسئلہ بالکل مکمل طور پر صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام عوامل کے باوجود، دشواریوں کے باوجود یہ ریسکیو آپریشن
एक बार फिर शुरू किया गया और अब तक ये कामयाबी से जारी है और कोई उम्मीद है कि आइंदा चंद लम्हात में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, यानी जिस तरह से आप बता रहे हैं तकरीबन 15 मिनट में 4 बच्चों को निकाला गया, तो मजीद जो है वो इतना ही वक्त दरकार होगा, इससे मजीद भी ज्यादा लग सकता है? देखें, अगर ये मौसम जो है इसी तरह हवा का दबाव बहुत ना बढ़ा और कोई बादल नपास्ता दुश्वारी पेश ना आई तो उम्मीद जारी है कि जिन बच्चों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। इतनी ही वक्त लगेगा और हो सकता है इससे कबल भी मजीद अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाए। जी ठीक है, रेस्क्यू किया जाए। आबिद हमीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें, 4 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी फंसे हुए बच्चों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सुबह से हमने ये मनाजिर देखे जो कि इंतहाई खौफनाक और तकलीफ दे मनाजिर थे और बहुत कोशिश की गई और पाक फ़ौज की जानिब से भी यकीनन इस वक्त वहाँ पर मकामी लोग भी जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी खबर है। और तकरीबन 15 मिनट में ये ऑपरेशन किया गया है और 4 बच्चों को निकाला गया और अभी भी 4 लोग जो हैं मौजूद हैं और उन्हें निकालने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। और अगर मौसम की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो है अंधेरा हो रहा है और रात का भी वक्त है, यकीनन बहुत सी मुश्किलात का भी मज़ीद सामना भी हो सकता है। और ये मनासिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को बाहिफाजत निकाला जा रहा है। 4 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तक निकाला गया है और बाकी ऑपरेशन जारी है। बाकी फंसे हुए बच्चों के लिए स्टिल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको आगाह किया जा रहा है, ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। SST रेस्क्यू ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी है अब तक के लिए, जिसमें 4 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं, 4 बच्चों को बाहिफाजत ज़मीन पर उतार लिया गया है। और अगर मौसम की बात की जाए तो विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा था और जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशगोई की गई है और मतला भी अबर आलूद रहा, लेकिन इस वक्त जो है हालात काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल में है और पाक फ़ौज की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे वहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से। यकीनन एक कामयाब ऑपरेशन किया जा रहा है और सुबह से हमने देखा बहुत सी मुश्किलात का भी सामना रहा और ये इस वक्त अभी तक ऑपरेशन जारी है और चंद ही लम्हों में ये उम्मीद की जा रही है बाकी तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। और आपको बताते चले, बच्चों को स्लिंग ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू किया गया है और इससे पहले भी देखा गया बहुत से ऑपरेशन का भी आगाज किया गया और ये आखिरी ऑप्शन थी। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज की जानिब से ये बड़ी कामयाबी सामने आई है, जिसमें 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है और अभी तक ऑपरेशन जारी है। और मौसम की भी सूरत हाल अगर आपको बताई जाए तो बारिश की भी पेशगोई की गई थी। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद। आबिद बताइएगा, अब क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी 4 बच्चे जो हैं इसी हवाले से इत्तला जो हमें मौजूद है वहाँ पे, चूँकि रातों का भी फुकदान है और मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तक जो हमें जो कंफर्म इत्तला मिली है, जो काम ने हमें कंफर्म किया है मुख्तलिफ इदारों के, वो कि 4 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हालात मुवाफिक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, इस वक्त खटन सूरत हाल है, लेकिन इस तमाम खटन सूरत हाल के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया है। जैसा कि आपने बताया कि बारिश की और मौसम खराब होने की पेशनगोई की गई थी, यही वजह थी। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो रोशनी ढल जाने के बावजूद फैसला किया गया कि एक आखिरी बार दोबारा कोशिश की जाए और इसमें इंतहाई तजुर्बाकार जो पैराट्रूपर्स थे उनको जो है इस्तेमाल किया गया। SSG के जो कमांडोज थे, पैराट्रूपर थे, जिनके और उनके जरिए इन बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। 4 बच्चों को रेस्क्यू आबिद, किया ये जा बताइएगा, चुका है। क्या मुकम्मल तौर पर वहाँ पर अंधेरा हो चुका है या उस वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है जिसकी वजह से अभी तक जो बाकी अफराद उन्हें निकाला नहीं जा रहा? देखें, अंधेरा मुकम्मल तौर पर नहीं हो चुका है, लेकिन अगर आप फिजाई ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए ये रोशनी नाकाफी होती है, इसको खतरनाक करार दिया जाता है। लेकिन इस तमाम तरह दुश्वारियों के बावजूद ये ऑपरेशन जारी रखा गया है और ये 4 बच्चों को कामयाबी से जो है वो निकाल लिया गया है। हमारी जो भी ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन नहीं रोका गया, बल्कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और उम्मीद है कि चंद लम्हात में जो है कुछ और बच्चों को भी वहां से निकाल लिया जाएगा। जी
ठीक है, तो कितना टाइम लग सकता है मजीद? जैसे आपने बताया पहले तो बहुत कम टाइम लगा था, अब क्या वजह, क्यों इतना टाइम लग रहा है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जो हवा का दबाव, रोशनी कम रोशनी, सूरज ढल गया है, रोशनी कम हो रही है, पहाड़ी इलाकों में सूरज तेजी से ढलता है, बहुत तेजी से जो है वहाँ पर शाम के साए फैलते जाते हैं, जिसकी ठीक है, वजह विंड से प्रेशर कैसा है इस वक्त वहां पर? हम्म, ठीक है आबिद, हमें से हमारा गालिबन राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, आपको आगाह किया जा रहा है। 4 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और मज़ीद भी तैयारियां की जा रही हैं बाकी अफराद को निकालने के लिए, और पाक फ़ौज की जानिब से ये कामयाब ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी है अब तक के लिए, 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी फंसे हुए बच्चों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यकीनन अंधेरा हो रहा है जिसकी वजह से ये तमाम मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। और मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और बारिश की जो है वो भी पेशगोई की गई है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा आप क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, अब तक की जो सूरत हाल है वो स्लिंग ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नजर आ रहा है। 4 बच्चों को जो है वो बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 4 अफराद हैं जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वो उनको भी रेस्क्यू करने का अमल जो है वो जारी रखा जाएगा, और अब तक की जो इत्तलात है कि वो स्लिंग ऑपरेशन के जरिए ही बाकियों को भी उधर से रेस्क्यू करके जो है वो वहां से रेस्क्यू किया जाएगा उस लिफ्ट से। तो जो अब तक की इत्तलात है वो यही है कि स्लिंग ऑपरेशन को के तहत ही जो है वो इनको अब तक जो है वो वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इस वक्त वेदर की सूरत हाल है और जो लाइट की सूरत हाल है उसको भी देखा जा रहा है, ताकि आगे अगले जो आने वाले 10, 15, 20 मिनट के अंदर क्या कोई फैसला कर रहे हैं। लेकिन ये एक असूली तौर पे ये फैसला किया गया है कि इन एनी केस जो है वो ऑपरेशन जो है वो रात को भी जमीन से जारी रहेगा। लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि जो ऑपरेशन जो है वो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।